Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to study the blood vessels. So now basically what are blood vessels? Blood vessels होती क्या हैं? Blood vessels are basically tubular structures. They are tube-like structures. ये tube-like structures होते हैं जिसमें हमारी body में blood जो है travel करता है. So blood is carried within the blood vessel. Blood vessel is actually a feature of the organisms that are having closed type circulatory system. वो ऑर्गेनिजम्स जिनका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम उनके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती एंड देयर ब्लड इज़ ओपन टू देयर बॉडी कैविटीज़. So now let's begin. As blood leaves the heart, it travels from aorta to arteries to arterioles to capillaries to venules to veins and then vena cava, which returns it finally back to the heart. So this is basically the course of blood that it travels within the body. Let's understand this, that for example, if this is the heart, four-chambered heart of humans or mammals, then from the heart arises the aorta, which brings the blood away from the heart. This is the aorta, which is a major artery. Then from aorta arises the small arteries. फिर aorta से branch होकर further small arteries निकलती हैं. These are arteries. Then from arteries arises the arterioles. फिर tissue level पर जाकर arteries में से arise होती हैं arterioles which are even smaller ones. These are the even smaller arterioles. Then arterioles gives rise to capillary. फिर arterioles से बिल्कुल एक कैपिलरी का नेटवर्क का राइज होता है विच इज़ इवन स्मॉलर. और कैपिलरी के लेवल पर जो है एक्सचेंज होता है. कैपिलरी का पूरा एक नेटवर्क का राइज होता है आर्टरीज से. दीज आर द कैपिलरीज. देन फ्रॉम द कैपिलरी arises the venules. Basically where the capillaries ends the venous system starts. एक वेन्यूल को नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ज्वाइन कर रहा होता है. बहुत सारा ब्लड कैपिलरी नेटवर्क से एक वेन्यूल में ड्रेन करता है. सो बेसिकली न्यूमरस कैपिलरीज जॉइंस अ सिंगल वेन्यूल. ये वेन्यूल है. वेन्यूल दैन जॉइन लार्जर वेन. दिस इज वेन and this is venule. So vein is larger than venule. Then multiple veins join vena cava. This is the vena cava. Now this vena cava returns the blood finally back to the heart. So this is the entire course that the blood travels. Now moving towards the types of blood vessels. So let's begin with arteries. So what are arteries? Arteries is also a type of blood vessel. ये भी एक blood vessel की type है. This is also a tubular structure that carries blood. But इसका main function क्या है? इसका main function है blood को heart से लेकर जाना. और vein का function क्या होता है? blood को heart में लेकर जाना. तो arteries takes the blood away. Before going to read this paragraph, I want you guys to know some basic features about the arteries. अगर हम arteries और vein की wall को compare करें तो artery की जो wall होती है वो vein से ज़्यादा thick होती है. We know when blood is ejected from the heart, जब heart जो है blood को eject करता है तो ये blood enter होता है aorta में. और aorta एक major artery है. So the first feature of artery that we are going to understand is that their wall is thick. जब heart blood को eject करता है तो heart blood को excessive pressure के साथ eject करता है. क्योंकि heart का काम क्या है? heart का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो blood को arteries में drain करेगा. heart का काम है blood को इतने pressure के साथ eject करना कि ना सिर्फ blood body में जाए बल्कि वो पूरे vascular system में flow करता हुआ वापस से heart में आए भी. So heart eject the blood with much higher pressure. जो blood pressure होता है वो ठीक ठाक होता है. excessively high pressure के साथ blood जो है heart से निकलता है और aorta में enter होता है. आर्टरी की वॉल थिक इसलिए होती है कि वो इतने प्रेशर के साथ जो ब्लड
हार्ट से आने वाला है वो उसको बर्दाश्त कर सके, उस प्रेशर को बियर कर सके. सो इन ऑर्डर टू बियर दैट प्रेशर ऑफ ब्लड द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक एज कम्पेयर टू वेन्स. एज लॉन्ग एज ब्लड ट्रैवल करता हुआ आगे जाता है फ्रॉम अयोर्टा दैट टू आर्टरीज टू आर्टीरियोल्स, ब्लड का प्रेशर ड्रॉप होता रहता है. ब्लड के प्रेशर में ठीक ठाक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है व्हेन इट रीचेस टू द लेवल ऑफ वेन्स. जब ये वेन्स के वेन्यूल्स के लेवल तक पहुंचता है तो इसके प्रेशर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ जाता है. दैट्स वाई वेन की जो वॉल होती है वो इतने थिक नहीं होती है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर्टरी दैट वी मस्ट नो इज दैट देयर ल्यूमेन इज अ स्मॉल. आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है. सो व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन इज अ हॉलो पैसेज वे. व्हाट आई मीन टू से इज वो स्पेस जिससे ब्लड को फ्लो करना है, वो स्पेस जिससे ब्लड गुजरता है उसको ल्यूमेन बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी देन दिस इज द ल्यूमेन ऑफ वेन. ये आर्टरी का ल्यूमेन है और ये वेन का ल्यूमेन है. वेन के अंदर जो स्पेस है ब्लड को रास्ता देने की, ब्लड को फ्लो करवाने की, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी. इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है कि आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है और वेन का ल्यूमेन जो है वो बड़ा होता है. सो दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट दैट वी नो कि हार्ट जो है वो ब्लड को बहुत प्रेशर के साथ इजेक्ट करता है, बहुत हाई प्रेशर होता है. और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो ब्लड जो है उसको पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो करना है. अगर वो प्रेशर से इजेक्ट नहीं होगा तो वो आगे तक फ्लो करेगा कैसे? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ल्यूमेन इन मेंटेनिंग दिस प्रेशर ऑफ ब्लड? एक्चुअली द स्मॉलर द ल्यूमेन, जितना छोटा ल्यूमेन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर मेंटेन रहेगा. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में गार्डन होता है. उस गार्डन में जो पौधे होते हैं हम उनको जब पानी देते हैं तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा पानी का पाइप होता है, हम दूर के पौधों को पानी पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जिस जगह से पाइप से पानी निकल रहा होता है हम वहाँ उंगली अगर रख देते हैं तो उसका डायमीटर छोटा हो जाता है और पानी क्या करता है, पानी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है. पानी का प्रेशर जो होता है, जिस प्रेशर से पानी आ रहा होता है वो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हमने उसके डायमीटर को छोटा कर दिया. इसकी वजह से पानी दूर तक जाता है. सही. नाउ कंसिडर दिस पाइप एज अ ब्लड वेसल. जितना ज़्यादा छोटा ल्यूमेन होता है उतना ज़्यादा जो है फ्लूइड का प्रेशर होता है, और जितना बड़ा ल्यूमेन हो जाएगा प्रेशर उतना ही ड्रॉप हो जाएगा. सही. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज़ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी, तो जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरी के अंदर प्रेशर से फ्लो कर रहा है. एंड इफ़ दिस इज़ द ल्यूमेन ऑफ अ वेन, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा कौन से वेजल में होगा, इन दिस आर्टरी और इन दिस वेन? ऑफ कोर्स आर्टरी के अंदर, क्योंकि आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है. द स्मॉलर द ल्यूमेन द मोर इज़ द प्रेशर. जितना स्मॉल ल्यूमेन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना बड़ा ल्यूमेन होगा प्रेशर उतना ही ड्रॉप हो जाएगा. अब आर्टरीज़ वो वेजल्स होती हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है हार्ट से ब्लड को पिक करना और फिर आगे उसे फॉरवर्ड करना. अगर आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो क्या वो ब्लड पूरे वेस्कुलर सिस्टम में ट्रैवल कर सकेगा? नहीं. दैट्स वाई द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज़ स्मॉल इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो कर सके. अगर आर्टरी का ल्यूमेन ही बड़ा हो जाएगा, आर्टरी का ल्यूमेनल डायमीटर ही ज़्यादा होगा, तो प्रेशर मेंटेन नहीं रह सकेगा. सो दैट्स वाई द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेन्स. नाउ अनदर फीचर ऑफ आर्टरी इज़ दैट दे आर हाई रेजिस्टेंस वेजल्स. आर्टरीज जो हैं हाई रेजिस्टेंस वेजल्स हैं. रेजिस्टेंस क्या होती है? फ्लो में रुकावट होना. अब ये क्या होता है, रुकावट या फिर मुश्किल होना फ़्लो में, ये आर्टरीज़ में क्यों है और ये वेन्स में क्यों नहीं है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वी नो दैट द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल. आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है. और अगर हम वेन के ल्यूमेन को देखें, द ल्यूमेन ऑफ वेन इज़ लार्ज. जितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी फ़्लो के लिए उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितनी कम स्पेस अवेलेबल होगी फ़्लो के लिए उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. यू अंडरस्टैंड? जितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी फ़्लो के लिए
उतनी कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वेजल। वो एक ऐसी वेजल जिसका डायमीटर स्मॉल है, जिसमें गुजरने की जगह ही कम है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फ़्लो को। और एक वो वेजल है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, उससे जो ब्लड होगा वो ईजिली फ़्लो करेगा। सो दैट्स वाई आर्टरीज आर कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस वेजल ड्यू टू देयर स्मॉल lumen. Now another very important property of arteries is that they are elastic. Arteries are elastic because of the presence of elastic fibers. इनके ट्यूनिका मीडिया में या मिडिल लेयर में इलास्टिक फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन। तो ये इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो आर्टरीज़ को इलास्टिक बनाते हैं। दे गिव आर्टरीज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है किसी चीज़ का फोर्स पड़ने पर अपने आप को स्ट्रेच कर लेना और फोर्स के रिमूव हो जाने पर अपनी शेप को वापस से रीगेन कर लेना। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, जो रबर बैंड होता है हम उसको जब स्ट्रेच करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो वक्ती तौर पर अपने साइज़ को बड़ा तो कर लेती है, लेकिन जब वो फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि अपनी शेप को वापस से रीगेन कर लेती है। एंड आर्टरीज आर मोर इलास्टिक दैन वेन्स। आर्टरीज वेन्स से ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस रीज़न। नाउ वी नो that the blood that is ejected from the heart enters the aorta or the arteries with a much greater pressure. ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगेन जब ये इतना हाई प्रेशर ब्लड आर्टरीज़ में एंटर होता है तो देयर इज़ अ चांस ऑफ आर्टरीज़ टू गेट रप्चर्ड। वो रप्चर हो सकती हैं क्योंकि वो प्रेशर बहुत एक्सेसिव होता है। अब इस एक्सेसिव प्रेशर को बियर करने के लिए एक तो नंबर 1 इज़ दैट आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। थिक वॉल कंट्रीब्यूट करती है इन ऑर्डर टू बियर दैट प्रेशर, बट थिक वॉल अलोन कैन नॉट बियर दैट प्रेशर। अकेले थिक वॉल इस प्रेशर को बियर नहीं कर सकती। देयर मस्ट बी सम एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी दैट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बियर दैट प्रेशर। उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए कुछ डिस्टेंशन, कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेंशन आर्टरीज़ में होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड इन ऑर्डर टू बियर दैट प्रेशर टू। दोनों काम एक ही वक्त में करने होते हैं। ना ही प्रेशर को इतना ड्रॉप होने देना है कि वो आगे वेस्कुलर सिस्टम में ट्रैवल ही ना कर सके, और ना ही इतना हाई होने देना है कि सही से टिश्यूज़ के लेवल पर जाकर एक्सचेंज ही ना हो सके। सो आर्टीरियल वॉल की एक्सपेंशन क्यों ज़रूरी है? आर्टीरियल वॉल की एक्सपेंशन ज़रूरी इसलिए है कि अगर आर्टरी की वॉल एक्सपैंड नहीं करेगी तो ब्लड एक्सेसिवली हाई प्रेशर के साथ फ़्लो करेगा, और अगर बहुत हाई प्रेशर के साथ फ़्लो करेगा तो जो एक्सचेंज होती है टिश्यू लेवल पर या जो परफ्यूजन होती है वो इनएडिक्वेट होगी। एक्सचेंज विल बी इनएडिक्वेट। जब टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज सही नहीं होगा तो टिश्यूज़ की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकेगी। दूसरा रीज़न क्या है? अगर जो है आर्टरी की वॉल एक्सपैंड ना करे, सिर्फ थिक हो और एक्सपैंड ना कर सके, तो व्हाट हैपन्स, देयर इज़ अ चांस ऑफ एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल जो लाइनिंग होती है वेजल की वो इंजर्ड हो सकती है। उसकी इंजरी के नतीजे में क्या होगा, जब वो इंजर्ड होती है तो वहाँ क्लॉट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉट बन जाता है तो वो क्लॉट इस वेजल के डायमीटर को मज़ीद स्मॉल कर देगा और ब्लड के फ़्लो में मज़ीद रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस एक्सेसिवली हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन टिश्यू लेवल पर जाकर परफ्यूजन सही, एक्सचेंज सही नहीं हो सकेगा। वेजल वॉल अलग से डैमेज हो रही है एंड दिस डैमेज मे लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज़ की हार्डनिंग हो सकती है, फर्दर आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। नाउ वेंस की वॉल जो है वो लेस इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि वेंस के अंदर प्रेशर इतना लग ही नहीं रहा है। वेंस के लेवल तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का प्रेशर जो होता है वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो चुका होता है। वेंस को एक्सपैंड करने की ज़रूरत किस लिए नहीं है कि वेंस का तो ल्यूमेन ही बड़ा है, वेंस पे तो इतना प्रेशर वॉल पे लग ही नहीं रहा। So that's why wall of vein is less elastic as compared to arteries. Now let's begin with the arteries. Now we can better understand this paragraph. After leaving the heart, blood first enters the large vessels called arteries. हार्ट से निकलने के बाद ब्लड जो है आर्टरीज़ में एंटर होता है। These are thick walled vessels. आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स पे जो है आर्टरी की वॉल कंसिस्ट करती है और 3 ही लेयर्स पर वेन की वॉल कंसिस्ट करती है। द आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये जो वॉल होती है इट इज़ कंपोज्ड मोस्टली ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये ज़्यादातर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है।
हैविंग कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स का काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। द मिडिल लेयर, द ट्यूनिका मीडिया, हैज़ अ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। नाउ इलास्टिक फाइबर्स का काम क्या है? वी नो इलास्टिक फाइबर्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी। ये मिडिल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स से कंपोज होती है। नाउ द इनर ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा, ये इनर लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, जो ब्लड से कॉन्टैक्ट में होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम। ये स्क्वेमस एंडोथीलियम बेसिकली स्क्वेमस एपिथीलियम ही होता है। These three layers constitute the wall of artery. Similarly, these three layers constitute the wall of vein. यही तीन layers जो होती हैं वेन की वॉल भी बना रही होती हैं। Now, the arteries expand slightly. Arteries में जो है एक्सपेंशन की एबिलिटी है, arteries slightly expand करती हैं like thick walled balloons की तरह। Between heart beats they recoil. Now, what is recoil? हार्ट बीट के दौरान आर्टरीज जो होती हैं वो रिकॉइल करती हैं। व्हाट इज़ रिकॉइल? रिकॉइल इज़ एक्चुअली द सेम इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है? फोर्स पड़ने पर एक्सपैंड कर जाना। फॉर एग्जांपल, बिफोर द ब्लड इज़ इजेक्टेड इनटू द अयोर्टा और द आर्टरी, आर्टरी का जो डायमीटर था वो इतना था, एंड व्हेन ब्लड इज़ इजेक्टेड what will become its diameter? ये थोड़ी बहुत एक्सपैंड करेगी एंड इट रीचेस टू दिस साइज। इसका ल्यूमेन थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। एंड देन जब वो फोर्स रिमूव हो जाएगी, जब ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाएगा, व्हाट हैपन्स देन? आर्टरी अगेन रीगेन इट्स शेप। ये इलास्टिक रिकॉइल होता है। इस इलास्टिक रिकॉइल से क्या होता है? दिस हेल्प टू पम्प द ब्लड एंड मेंटेन अ स्टीडी फ्लो थ्रू द स्मॉलर वेजल्स। इससे क्या होता है कि स्टीडी फ्लो मेंटेन रहता है, ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है। अपनी शेप को जब आर्टरी वापस से रीगेन करेगी तो एज अ पंप काम करेगी, ब्लड को आगे की तरफ पुश करेगी। आर्टरीज ब्रांच इनटू वेजल्स ऑफ इवन अ स्मॉलर डायमीटर कॉल्ड आर्टीरियोल्स। अब आर्टीरियोल्स क्या हैं? आर्टीरियोल्स आर एक्चुअली स्मॉलर आर्टरीज होती हैं। अगर हम अयोर्टा को और बाकी स्मॉलर आर्टरीज़ को कंपेयर करें तो जो आर्टीरियोल्स का डायमीटर होता है वो फर्दर और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। जैसे जैसे हम वेस्कुलर सिस्टम में आगे की तरफ जाएंगे टिल द लेवल ऑफ कैपिलरी, जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता रहता है। अयोर्टा का डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। द डायमीटर ऑफ स्मॉलर आर्टरीज इज़ मोर दैन आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल से ज़्यादा जो डायमीटर होता है वो स्मॉलर आर्टरीज़ का होता है। अब आर्टीरियोल के लेवल पर जाकर जो डायमीटर होता है वो फर्दर स्मॉल हो जाता है। नाउ आर्टीरियोल्स विच प्ले अ मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग हाउ ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। नाउ व्हाट डज इट मीन? आर्टीरियोल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल सेल्स से बनते हैं। स्मूथ मसल क्या है? मसल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। स्मूथ मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब आर्टीरियोल्स जो कि स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं, दे आर अंडर द कॉन्स्टेंट कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन के, अब स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं आर्टीरियोल्स। दैट्स वाई दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन दे गेट सिग्नल। जब जैसे ही इनको सिग्नल मिलेगा दैट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब आर्टीरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टीरियोल्स का डायमीटर फर्दर छोटा हो जाता है। जब डायमीटर छोटा हो जाता है तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स ब्लड अब ज़्यादा तेज़ी से उस आर्टीरियोल को क्रॉस कर जाएगा। जब उस आर्टीरियोल से क्रॉस कर जाएगा तो आर्टीरियोल्स के बाद आती है हमारे पास कैपिलरीज, जिनके अंदर जो होता है एक्सचेंज होता है। तो मतलब कैपिलरी लेवल से भी ब्लड जो है बहुत जल्दी से फ्लो कर जाएगा। ये होता कब है? कब आर्टीरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है जो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करते हुए हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कुछ ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको ब्लड की इतनी नीड नहीं होती एट द टाइम व्हेन एनीवन इज़ एक्सरसाइजिंग। सो एक्सरसाइज करते हुए बंदे में जो ब्लड की ज़्यादा नीड होगी वो उसके लंग्स को होगी, उसकी मसल्स को होगी, और जिन ऑर्गन्स को नीड कम होगी वो उसमें उसकी स्किन आ जाती है और बाकी दूसरे ऑर्गन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जिन ऑर्गन्स में आर्टीरियोल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं
कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सचेंज थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गन्स जिनमें ब्लड के इस वक्त नीड ज़्यादा है। तो ये सारा काम जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो किससे लेता है? वो सिस्टम लेता है आर्टीरियोल्स के ज़रिए से। जब एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसके जो लंग्स और मसल के जो आर्टीरियोल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो रिलैक्स करने से उन आर्टीरियोल्स का जो डायामीटर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर कम और फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर एक्सचेंज अच्छा होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छे से ड्रॉप की जाएगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से पिक की जाएगी। सो आर्टीरियोल्स आर द वेजल्स दैट डिटरमाइन हाउ द ब्लड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज दे आर composed of smooth muscle. Now let's have a look on the wall of artery and vein. Artery और vein के wall में क्या difference है? Looking first in the artery. This is the tunica intima of artery that is mainly composed of endothelial cells. Then comes the tunica media, which is the middle layer, and the middle layer is mostly composed of elastic fibers and smooth muscle cells, as we can see. This is the smooth muscle cell, and this blue color is the elastic fiber. ये जो blue colored हैं वो elastic fibers हैं. Then comes the tunica externa that is mainly composed of fibrous connective tissue. इसमें fibrous connective tissue होता है. Now coming to the wall of vein. Vein की wall किन 3 layers से compose हो रही है? वही same 3 layers. बट डिफरेंस क्या है? ट्यूनिका इंटीमा वही सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम या एंडोथीलियम. ट्यूनिका मीडिया में क्या है? इलास्टिक फाइबर्स नहीं नज़र आ रहे हैं. स्मूथ मसल सेल्स हैं. स्मूथ मसल सेल्स भी लेस फ्रीक्वेंट हैं और इलास्टिक फाइबर्स तो हैं ही नहीं. बहुत कम इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन. दैट इज़ वाई दे आर लेस इलास्टिक. ये लेस इलास्टिक होते हैं. नाउ कम्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन. Tunica externa is also composed of connective tissue. This is the tunica externa. The wall of artery is this much thick. This is the thickness of the wall of artery. And this is the thickness of a wall of vein. Vein की thickness ये है. So there is difference in their thickness too.